था कि TNV प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस बनी. TNV then divided into two branches, that is one Qaid-e-Azam University branch and International Islamic University branch. The International Islamic University branch, Alhamdulillah, is the main organ of the TNV Youth Forum, and it came into being in the January 2022 with the purpose of allowing the organization to promote its mission further. The chapter organized its first event at national level by securing international collaborators, Alhamdulillah. We partnered with LACA, that is a society based in China. We partnered with them and we hosted a national mock trial competition, which was held in May 2023. And more than 15 teams across Pakistan participated in them. And Alhamdulillah, it was a very successful event. Law WITS जो आज के collaborators हैं हमारे, an exceptional organization, मैम खानसा सर, मैम खानसा आज हमारे साथ मौजूद भी हैं. She will give you a brief introduction about what Law WITS is doing and what Law WITS is providing for the students of law students of Pakistan. A basic introduction of Law WITS is that it is a non-political, non-governmental organization which was founded in 2020. It primarily aims to foster legal education globally without respecting any form of discrimination. It aims to organize such events such as today, which can hone the skills of the young law students. We are honored that Ma'am Khansa, the co-founder of Law WITS, is with us today. She will formally introduce you all to the Law WITS. Please welcome Ma'am Khansa. Ma'am Khansa, over to you. Thank you so much, Ammar. Assalamu alaikum, everyone. Am I audible to you all? Walaikum salam. Yes, you are. All right. Thank you so much. Firstly and foremost, thanks to Ammar and TNV IIUI Chapter to invite us and for this collaboration. So I would like to introduce a little bit about Law WITS. So Law WITS was founded by me and Ascent. We both are undergraduate law students at Government Sin Law College, Hyderabad. And we founded this organization with the main aim to foster legal education globally. और ग्लोबली से कहने का मकसद ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड. और वो हमने स्टार्ट ही इस तरीके से लिया कि वी स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन विद द नेम ऑफ लॉ विट्स थ्रू यूट्यूब चैनल, जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स लॉ को पढ़ाते थे. उस टाइम पे जब कोविड का सिचुएशन थी और हमने तभी इसको इंट्रोड्यूस करवाया था. और इसका मकसद ये था कि जो लोग अभी इंस्टीट्यूट्स बंद हैं तो ऑनलाइन ही पढ़ लें. तो बहुत सारे हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बनाई, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, English jurisprudence, UK, USA Constitution, tort law, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमने यूट्यूब पर वीडियोस बनाई और साथ साथ शॉर्ट वीडियो सीरीज भी चलाई. और उसके बाद हमने जो है वो वर्कशॉप स्टार्ट की. और जैसे कि हमने अभी तक आर्ट ऑफ मीटिंग पर एक वर्कशॉप करवाई, फिर हमने एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर करवाई. और अभी ये जो हम एज ए कोलैबोरेटिव पार्टनर जो है वो यहाँ पर मॉक ट्रायल्स पर एक वर्कशॉप करवा रहे हैं. कोई कुछ कह रहे हैं? मुझे आवाज आ रही है, ये किसी का माइक मेरे ख्याल में गलती से होता. तो बहरहाल उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज एक्टिविटीज हमारे एक बहुत अच्छा एक्सटेंसिव और रिबोरियस एक लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स भी हम करवाते हैं, जिसमें 28 क्लासेस होती है. बहुत डिटेल्ड होता है, बहुत थोरो सी आपको फीडबैक भी मिलती है. और ये जो हमारा कोर्स है अभी तक हमने इसकी 3 बैचेस भी चल गई हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे फिजिकल भी करवाएं. और वैसे हम इसे ऑनलाइन करवाते हैं. तो अभी जो हमारी एक लास्ट बैच जो चल रही है करंटली वो 3rd बैच है और हम न्यू भी इंशाल्लाह स्टार्ट करवाने वाले हैं. तो इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड में कॉन्टेक्ट अस एट ilawits@gmail.com और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी वहाँ पे भी. तो आई रियली होप कि आज की जो वर्कशॉप आप लोगों के पास है मॉक ट्रायल्स पर, उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. तो आई रियली होप कि आप लोगों को पता चलेगा कि हाउ कोर्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम मॉक ट्रायल्स, और मॉक ट्रायल्स भी कितने इंपॉर्टेंट है एज ए लॉ स्टूडेंट्स आपके लिए. एंड आई वुड से कि दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन मीटिंग, क्योंकि ये रियल कोर्ट से थोड़ा ज्यादा हमारे पास जो है वो कह सकते हैं. हम बहुत से लोग कहते हैं कि मीटिंग तो बिल्कुल डिफरेंट रियल कोर्ट से. तो मॉक ट्रायल्स तो बहुत ज्यादा सेम है रियल प्रोसीडिंग को मिलेगा. इट वुड बी रियली हेल्पफुल. और हमारे पास जो स्पीकर्स हैं उनके पास भी एक वास्ट एक्सपीरियंस है इन मॉक ट्रायल्स. सिस्टर बजाफ एंड other person is Mirza always. So that's all from me. I will move.
Well, thank you very much, Ma'am Khansa, for your time today. We are really appreciative that you were here to join us. Now, dear participants, I would like officially to move on from the housekeeping to initiate the event that we have all joined here for today. Well, for today, we are going to have two sessions. The session one is of introduction to mock trial and team composition, which will be given by Sir Bazaf Shahbaz Sahab, and while the other session will be given by Mr. Awais Beg. We're thrilled to have you all today, and we are looking forward to a very good session today. A brief introduction for our first speaker, Sir Bazaf Shahbaz Sahab, is that he is a practicing young lawyer and brings practical experience and a passion for mock trial competitions to our event. And Mr. Bazaf Shahbaz also judged our mock trial competition that was held in May, and he will be guiding us through the fundamentals of mock trial and importance of an effective team composition. So without further time delays or further ado, let's give him a warm virtual welcome to Sir Bazaf Shahbaz Sahab. Sir Shahbaz, over to you. First of all, thank you so much, Amar, for such a detailed introduction. First of all, हम इस session को बहुत ज़्यादा formal नहीं रखेंगे. I would be a little bit casual and we'll be just bilingual ताकि जो सुनने वाले हैं उनको बेहतर अंदाज में समझ आ सके. And definitely after this session, just at the end, we'll be having a question answer session. तो आपके कोई भी questions हों, आप तब तक hold कर लीजिएगा, उसको note down कर लीजिए, and then we'll just have a detailed discussion about it. So firstly, I must congratulate the TNV as well as the law wits. उन्होंने एक इतना अच्छा session जो है organize किया, and I really hope कि जो participants हैं उन्हें कुछ अच्छा सीखने को मिले. So we'll just start with that. Let me just share my screen first. All right. So anyone from the organizers, just please confirm to me कि क्या आपको slides show हो रही हैं? Can anyone please confirm to me? Yes. All right. That's fine. चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं from case files to courtroom, exploring the mock trial. Mock trial is something that was not really very much common. I mean, it still is not very much common as compared to the law meetings. Law meeting का आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो organizations हैं, universities हैं, international organizations meeting के ऊपर तो focus कर रही हैं, लेकिन mock trial बहुत ही कम जो है वो organize किया जाता है. लास्ट टाइम जो मैंने ऑर्गेनाइज देखा था एक मॉक ट्रायल वो कि TNV IIUI ने ही इन कोलैबोरेशन विद लाका करवाया था, एंड आई मस्ट से दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. I mean, I and the fellow judges, we had such a great time in adjudicating that competition that उसमें कुछ participants थे, मुझे अभी तक उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन याद है, and I must say it was extraordinary. So आज हम सीखेंगे कि एक्चुअली मॉक ट्रायल और मूट कोर्ट कंपटीशन में डिफरेंस क्या है. ये हमारे आज के जो हैं इस सेशन के फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स और 40 मिनट्स हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि एक मॉक ट्रायल चीज क्या है, मॉक ट्रायल और मूट कोर्ट का डिफरेंस क्या है, मॉक ट्रायल के अंदर टीम कंपोजिशन क्या होती है, और इसके इवैल्यूएशन क्राइटेरियंस और केस सिनेरियो जो एक हमसे आज शेयर किया गया है जो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसको किस तरह से लेकर आप चलते हैं मॉक ट्रायल में. So that's just me, and we'll be just beginning with the mock trial itself. So first thing, what is a mock trial? Trial आपने जानते हैं civil, whether it is a civil trial or a criminal trial. आप देखते हैं कि उसमें कोर्ट है, दो साइड की जो है पार्टीज हैं, one side claims one thing, the other side claims the other thing. They present they present their claims in a civil case and a complaint or an FIR in a criminal case, and then it begins with that. So एक सारा जो एक trial का जो experience है, it starts from one single document and it goes on further, submitting certain documents, then they call for the evidence, and then there is a judgment. So what is a mock trial? Actually mock trial के अंदर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक सिमुलेटेड कोर्ट रूम एक्सपीरियंस दिया जाए तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको. और इसमें जो केस होते हैं जनरली कभी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रियल केस विद सम सॉर्ट ऑफ फैक्ट्स जो कि छुपा लिए जाते हैं कि एग्जैक्टली वो केस की डुप्लीकेशन ना हो, और कभी कभी एंटायरली हाइपोथेटिकल केस होता है, तो उसके जरिए किया जाता है. नाउ मॉक ट्रायल कैन बी ऑफ टू काइंड.
हम पाकिस्तान में ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स मैंने देखे हैं पाकिस्तान से ही ज्वाइन किए हुए हैं। तो पाकिस्तान में जो ज्यूरी ट्रायल है वो नहीं होता, पाकिस्तान में बेंच ट्रायल या जिसको कोर्ट का ट्रायल कहती हैं ज्यादा यही होता है। ज्यूरी ट्रायल के अंदर हमने कुछ मूवीज में, आई एम प्रेटी मच श्योर कि आपने कुछ अगर लीगल ड्रामाज या सीरीज या मूवीज देखी होंगी तो उसमें अमेरिका में एक ज्यूरी ट्रायल जो है उसको फोकस किया जाता है। आई मीन वन ऑफ द फेमस ट्रायल्स जो रिसेंटली हुआ एम्बर हर्ड वाला, तो दोज आर द थिंग्स जो जिसमें ज्यूरी को एड्रेस करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में जनरली ये बेंच ट्रायल ही होता है जिसमें आप सारा का सारा जो एविडेंस है वो कोर्ट या जज के सामने जो है प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मॉक ट्रायल इससे क्यों जरूरी है, क्या ऐसा मौका हम देखते हैं या क्या ऐसी डिफिशियंसीज देख रही हैं आज के जो लीगल स्टूडेंट्स को जो फेस करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि मॉक ट्रायल जो है बहुत जरूरी होता जा रहा है। वन थिंग के मूट के अंदर आप सिंपली अपना जो आपकी आर्गुमेंट्स है, जो आपकी जो एक प्रेजेंटेशन है वो उसकी प्रेजेंट कर रहे हैं और ज्यादा रिसर्च का काम है। लेकिन मॉक ट्रायल में सिंस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द केस, देयरफॉर यू हैव टू डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग कि इस केस को कैसे लेकर चला जाए। अगर एक हम इस पर जो एक सेशन है इसमें हम एक क्रिमिनल ट्रायल को डिस्कस करेंगे। अब उस क्रिमिनल ट्रायल में हम देखेंगे कि क्या क्या उसके जो हैं वो एक विटनेसेस होने चाहिए, उन विटनेसेस की आइडियली क्या टेस्टिमनीज होनी चाहिए, डिफेंस अगर आती है तो उसके पास क्या डिफेंस लेकर उसको आना है, जो डिफेंडेंट का जो डिफेंस अटर्नी है उसको अपना क्या स्टांस बनाना है टू शेक द टेस्टिमनीज ऑफ द विटनेसेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। So for all these purposes, you have to develop a strong critical thinking. You have to take each and every step and think upon it and see कि उसको हमने किस तरह से जो है कोर्ट में लेकर चलना है। The next thing is the advocacy skills. Now, advocacy skills is a general term. It includes like a long list of skills from research to presentation to drafting to client conferencing. It includes as well as the testimonies जो आपने शहादत या विटनेस की जो आपने टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवानी है कोर्ट रूम में, ये सारी स्किल्स का एक सेट है। तो मॉक ट्रायल के अंदर आपकी ये वाली स्किल्स ज्यादा जो है वो एक्सरसाइज हो रही है, तो ज्यादा चांसेस है कि आपको सीखने का ज्यादा मौका मिल सके। देन अगेन प्रेजेंटेशन स्किल्स इन अ रियल लीगल सेटिंग। नाउ you have to assume, now you have to address a judge, you have to ask for the testimony of a witness, you have to cross-examine the opposite side's witness. So this is all those things जो कि आपकी presentation skills को जो है improve करती हैं। And then we have the very important thing, stepping into the shoes of the client. Now, as a law student, let me tell you, this is one thing that is extremely prohibited. You should never step into the shoes of the client. It's not really recommended. However, for the purposes of this mock trial, we have to do that. Why? Let me tell you. हम आगे तक डिस्कस करेंगे कि जो की टीम कॉम्पोजिशन है उसमें लॉ स्टूडेंट्स की जो हैं वो एज अ विटनेस प्रिपेयर होते हैं। अब जब आप एज अ विटनेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल, अब आपके ऊपर उसके अंदर जो पहला विटनेस होगा, लेट्स से कि वो तो एक्यूज हिमसेल्फ भी होगा, जिसको प्रोसिक्यूशन या डिफेंडेंट जो भी है उनको एग्जामिन करना चाहेंगे, क्रॉस एग्जामिन करना चाहेंगे। नाउ हियर कम्स द मेन थिंग, you as a law student you have to step into the shoes of that person जिसके ऊपर जो है इल्जाम चल रहा है, या फिर you might have to step into the shoes of a client जो कि एक्सपर्ट टेस्टिमनी लेकर आ रहा है, जो कि एक एक्सपर्ट विटनेस है। ऐसे सूरत हाल में you have to train your mind to think कि वो विटनेस किस तरह से सोचता है, उस विटनेस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो कि उस विटनेस को कोर्ट के सामने लेकर आने हैं, और क्या वो तरीकाकार होना चाहिए कि जिसके जरिए उसकी जो टेस्टिमनी है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल सके। ये वो सारी चीजें कि जब आप अपने ऊपर एक एडवोकेट या लॉ स्टूडेंट से हटकर एक विटनेस की तरह होकर सोचेंगे, एंड विटनेस इज समटाइम्स ऑलवेज अ क्लाइंट। सो दिस इज द स्कीम व्हाई आई एम फोकसिंग एक इंसान को या एक मॉक ट्रायल के पार्टिसिपेंट को क्यों जरूरी बन जाता है कि ही हैज टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्लाइंट। सो मूविंग फॉरवर्ड, why mock trial really matters? I mean, all your law students, I'm pretty much sure कि आप ज़्यादा जो है focus theory पे करते हैं. We are more focused on learning the laws, understanding the theory of the laws, learning the background of the laws. We sometimes even read judgments that are the application of the law. But all those processes, none of them really focuses on how you have to present that law
coupled with a set of facts before a court. मॉक ट्रायल इज द थिंग. मॉक ट्रायल वो एक सेशन है, ये एक ऐसा कंपटीशन या एक ऐसी ये एक एक्टिविटी है जो कि आपको फोकस करती है कि लॉ स्टूडेंट से ट्रायल एडवोकेट आपको कैसे बनना. इट हेल्प्स यू इन अगर सिविल ट्रायल होता तो आई मीन इट वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम ड्राफ्टिंग ऑफ अ प्लेंट and then the written statement from the opposite counsel, then the testimonies, then the judgment, then the before the judgment closing arguments. तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि एक मॉक ट्रायल फोकस करता है कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप एक लॉयर से बढ़ के आगे जाएं और आगे जाके सीखें कि किस तरह से आपने अगली जो अगले स्टेप्स हैं जो कि आप अपनी इंशाल्लाह डिग्री के बाद सीखेंगे उसको कैसे आपने अप्लाई करना है. बिकॉज जो मूट या फिर जो लीगल रिसर्च वो आप देखते हैं वो हायर फॉर्म्स पे होते हैं. You start in Pakistan, you start from the trial court, from the district court. पहले लाइसेंस आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मिलता है जहाँ पे आपने ट्रायल ही करनी है. So that is why it is more important for you कि आप ट्रायल का प्रोसेस सीखें. So now mock trial किस तरह होता है? I mean before coming into this session, I am pretty much sure कि शायद कुछ स्टूडेंट्स का बिल्कुल भी इसमें एक्सपोजर ना रहा हो कि मॉक ट्रायल किस तरह से होता है, क्या उसका प्रोसेस है. So that is why I have identified two of the Moot Court mock trial competitions. The first one जो मई का जिक्र किया हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने, मोहम्मद अमार ने, जो TNV IIUI ने कराया. I was actually seeing their social media and I have seen कि उन्होंने कुछ वीडियोस जो one of the very good elements जो थे उसके वो उन्होंने शेयर किए हैं अपने सोशल मीडिया पे. तो आप वो भी देख सकते हैं. That would help you. लेकिन उसके अलावा एक फुल मॉक ट्रायल है about that long video of 2 hours. I mean it might get boring but हम इतने लंबे लंबे सीजन्स भी देख लेते हैं. तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप थोड़ा सा सीखने के लिए और अपने नॉलेज के लिए टाइम निकालेंगे और इस वीडियो क्लास में देखेंगे बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड मॉक ट्रायल. आई हैपन टू सी दैट एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. अगर आप इसका प्रोसेस सीखना है, देखना है कि इंटरनेशनली लॉ स्टूडेंट्स कैसे इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे इसमें सीख रहे हैं, इट इज अ मस्ट रिकमेंडेड वीडियो. यू मस्ट वॉच इट. सो मूविंग टुवर्ड्स कि अब हमारे आई वुड जस्ट like a very quick hand raise अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा हो कि how many of you have some acquaintance with the Moot Court competition. just a quick hand raise ताकि मुझे अंदाजा हो कि कितने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो है वो अंदाजा है कि एटलीस्ट how a Moot Court competition works. all right. Yeah, that's good one. That's increasing. All right. So in this, we have only 7 or 6 hands raised. It's perfectly fine. All right. So अब अगर किसी को अंदाजा होगा भी या नहीं भी, दोनों सूरतों में हम जो है बता देते हैं. Now you all are requested. Okay, fine. I have seen all the hands raised. You can now just lower it down. अब हम देखते हैं उसको कि exactly difference क्या है in mock trials में और moot courts में. So moving forward. मॉक ट्रायल में क्या है कि एक सिमुलेटेड ट्रायल बेंच है या जूरी या ट्रायल जूरी की प्रोसीडिंग्स हैं. यानी एक फुल कोर्ट है जिसमें आपका एक फुल ट्रायल चलेगा. ट्रायल मींस you start from the complaint or you start from the plaint in a civil case and then it goes on and on and on. However ऐसा नहीं होता मूट कोर्ट कंपटीशन में. इसके कॉन्ट्रास्ट में मूट कोर्ट क्या है, वो एक सिमुलेटेड एपलेट फोरम या हाईएस्ट फोरम बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आपने पाकिस्तान के जो नेशनल मूट कोर्ट है वहां पे किया हो तो जनरली उसमें जो फोरम बनाया जाता है दैट इज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और मे बी समटाइम्स इवन द हाई कोर्ट. तो ये हायर फोरम्स जो हैं एक मूट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने के लिए उसका सिनेरियो होता है. लेकिन जो मॉक ट्रायल है उसमें एक ट्रायल कोर्ट का सिनेरियो होता है जो कि जनरली अगर वो सेशन का ट्रायल है तो डेफिनेटली फ्रॉम द मैजिस्ट्रियल ट्रायल और एडिशनल सेशन ट्रायल. लेकिन अगर जो है वो सिविल ट्रायल है तो दैट डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम द सिविल जज एंड देन इट गोज ऑन टुवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट जज एंड देन द हाई कोर्ट. तो दिस इज द होल डिफरेंस कि वहां पे आप एक मूट पॉइंट पे एक हायर फोरम को एड्रेस कर रहे होते हैं एंड डेफिनेटली वहां पे जो है थोड़ी सी ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं. यू हैव टू अज्यूम दैट नाउ यू इन योर माइंड आर फोकसिंग और एड्रेसिंग द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट. बट इन अ ट्रायल तो इतना थोड़ा सा उतना फॉर्मल नहीं होता. you can feel a little bit relaxed, not with the sense ke how you have to address the judge, but in a sense ke you know that it is a whole process going on other than just presenting what your research is. So next point जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें, यहाँ पर एक्चुअल टेस्टिमनीज होती हैं. जो विटनेस है उसको बिठाया जाता है, विटनेस को बिठा के उससे पहले
एग्जामिनेशन इन चीफ, या कुछ वर्ड यूज करते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन, वो की जाती है, और फिर अपोजिंग अटर्नी उसके अंदर आके क्रॉस एग्जामिन करता है। जबकि मूट कोर्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मूट कोर्ट के अंदर आपके पास एक सेट ऑफ फैक्ट्स हैं, आपने अपनी रिसर्च की है, और उस रिसर्च के ऊपर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसको डिस्कस कर रही हैं। तो दीज आर द बिग थिंग्स कि उसके अंदर आप सिंपली कोर्ट के सामने डिस्कस कर रही हैं अपने एक लिमिटेड टाइम के अंदर, और इसके अंदर आप एक्चुअल कन्वर्सेशन कर रही हैं आपके विटनेसेस के साथ, बिकॉज जो विटनेसेस की जो टेस्टिमनीज कोर्ट के सामने रिकॉर्ड की जाएंगी उसकी बेसिस के ऊपर आप अपने फर्दर आर्गुमेंट्स देंगे, और फर्दर आर्गुमेंट्स आने के बाद उसके ऊपर जो है जजमेंट आएगी। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। So actually, that is the point. Let me go back. That is the point which makes it so better and so distinct from the moot court कि आपकी जो अपनी फैकल्टीज हैं, जो आपकी अपनी स्किल्स हैं, वो यहाँ पर ज्यादा पॉलिश हो रही होती हैं। मूविंग टुवर्ड्स कि काउंसिल ने मॉक ट्रायल के अंदर 3 तरह के लोगों को एड्रेस करना हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, इट हैज टू एड्रेस द जज। जज को कहाँ पे एड्रेस करना है? ओपनिंग स्टेटमेंट में, क्लोजिंग स्टेटमेंट में, एंड समटाइम्स व्हेन ही हैज टू टेक ऑब्जेक्शन, or sometimes I mean all the time they have to address the witnesses as well कि किस तरह से जो है witnesses की testimonies रिकॉर्ड की जाएंगी और दूसरे witnesses की क्रॉस एग्जामिनेशन की जाएगी। जबकि मूट कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। मूट कोर्ट में इट्स सिंपली लाइक you are prepared, you are all dressed up, you are standing before a judge and you are just telling him what the law is, what the interpretation of law is, and how this law should be applied and how the opposite interpretation should not be applied। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक जज को, या फिर मॉक ट्रायल में कभी कभी बड़े लीथल किस्म के जजेस भी होते हैं। आई जस्ट रियली ट्राई कि मैं कभी लीथल जज ना हूँ अभी, आई जस्ट ट्राई टू टेक थिंग्स लाइटली, सम ऑफ यू माइट नॉट एग्री विद दैट, जो मुझे जानते हैं, बट स्टिल आई रियली ट्राई माय बेस्ट कि मैं कभी भी लीथल ना हूँ। बट वहां पर क्या होता है कि एक सेट ऑफ बेंच है, एक बेंच है या 2 जजेस का बेंच है या एटलीस्ट 3 जजेस का बेंच है, आपने सिर्फ उनको एड्रेस करना है। लेकिन यहाँ पर simultaneously you have to address the judge, you might have to address the objection of the opposing counsel, you might have to address the the witness about the testimonies. So it's a whole big thing. And then the next thing is the presentation of evidence. I mean, I was really impressed by the LACA and the TNV IIUI last time when they held this competition. And one of the participants, I must tell you, one of the participants, she really rocked the stage. आई रिमेम्बर कि जब एक विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन वो अटर्नी कर रही थी, एंड उन्होंने क्वेश्चन उनसे पूछा कि क्या आप ये बताएं कि क्या चीज एविडेंस का हिस्सा है। नाउ दैट विटनेस हैड स्टेटेड इन हिज टेस्टिमनी, इन हिज डायरेक्ट एग्जामिनेशन एज वेल एज इन हिज रिटन टेस्टिमोनियल कि ये फैक्ट इस तरह से है। एंड जब उन्होंने पूछा तो ही आंसर्ड अदरवाइज, एंड राइट देन दैट अटर्नी पुल्ड आउट the annexures, the appendix जो उस फाइल के साथ मिले थे, and that attorney showed to the court कि लॉर्डशिप आप ये देखिए कि ये जो बात कह रही है ये है, लेकिन फलाना अनेक्चर है, उसकी फलानी लाइन के ऊपर ये बात लिखी है। तो दिस वाज समथिंग आई वाज कंप्लीटली अमेज्ड कि हाउ अ गुड अटर्नी नोज कि दूसरे की टेस्टिमनी कहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आपके ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं राइट देन एंड देयर। जबकि जो मूट कोर्ट है वहां पे ये सारी चीजें नहीं होती हैं। मूट कोर्ट में जनरली आप एक लीगल डिबेट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यू टॉक अबाउट द लीगल प्रिंसिपल्स एंड ऑल दैट। सो दीज आर द होल थिंग्स व्हिच रियली मेक द मॉक ट्रायल फैसिनेटिंग। ऑलराइट, सो आई जस्ट वांट वन ऑफ योर वॉलंटियर कि वो इस कोटेशन को जो है वो अपने सारे जो हमारे participants हैं उनको समझाएं। Just any one of your volunteer, and I will not give you more than 30 seconds. All right. So just raise your hand, and I will, ask the participants. I will ask you to unmute yourself. So anyone who is willing to explain this particular quotation to me. Don't tell me कि सब सो रहे हैं. Please don't tell me that. All right, so we have Saifur Rahman. All right, Saifur Rahman, you are being asked to unmute, and आप इसको जो है थोड़ा explain कीजिए हमें। सैफ, क्या आप मैं सुन पा रहे हैं? सैफ, आपकी हम आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। Anyone else? मेरी आवाज? Oh yes, now you are audible, Saif.
आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए इसका क्या मतलब है इस कोटेशन का? इसका मतलब ये है कि जो जस्टिस साहब हैं इंडियन कोर्ट के, वो कह रहे हैं कि जो ट्रायल कोर्ट का लॉयर है सिर्फ उसे ही हम एक रियल लॉयर कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आर्ट बनाना जानता है। वो आपको मेन जो चीज बन के आएगी वो आपको बना के देगा। और जो दूसरा लॉयर है, जो अपील कोर्ट का लॉयर है, वो सिर्फ उसको एनालाइज कर सकता है कि अच्छा इसमें ये हुआ था और ये इस तरह से है, लेकिन वो उस चीज को बना नहीं सकता। तो वो रियल आर्टिस्ट अपील कोर्ट वाला जो लॉयर है वो नहीं है, बल्कि जो रियल लॉयर है वो ट्रायल कोर्ट का लॉयर है। Well, perfect. Thank you so much, Saif, for clearing that to us all. Exactly, this is the thing. देखिए मॉक फाइल में क्या है, जिसका मैंने आपको बताया कि मॉक फाइल स्टार्ट होता है एक सिंपल प्लेन से, या अगर एक क्रिमिनल मॉक फाइल है तो वो स्टार्ट होगा सिंपल एफआईआर से या फिर एक रिटन कंप्लेंट से. So this is how it is a lot different than from the moot court or the appeal lawyers. अब इसको हमने आर्टिस्ट क्यों कहा है, ये समझना जरूरी है. ऑल्दो आई मीन जो उनकी कोटेशन है, आई माइट नॉट कंप्लीटली एग्री विद दैट, लेकिन स्टिल हमें समझना जरूरी है कि उनका मतलब क्या है. गाइस, आई एम रियली सॉरी अगर आपके पीछे वॉल्स की आवाज आ रही है, बिकॉज यू नो दैट गाय इज टेलिंग दैट थिंग, व्हिच इज रियली अ गुड वेदर हियर राइट नाउ. सो कमिंग टुवर्ड्स, देखिए आर्टिस्ट हम क्यों कह रहे हैं उसको. आर्टिस्ट हम कह रहे हैं कि जो एक ट्रायल लॉयर है वो आज बैठ के डिजाइन करता है उस पूरे ट्रायल की प्रोसीडिंग्स को, कि वो क्या चीज लेकर आएगा, वो क्या चीज अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बोलेगा, वो कौन से विटनेस को जो है प्रोड्यूस करेगा, वो उसके बाद क्या अपने आर्गुमेंट्स देगा. एंड सिमिलरली डिफेंस, क्रिमिनल ट्रायल के अंदर डिफेंस सोचेगी कि जो प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस सामने लेकर आई है, जो उन्होंने लॉ पॉइंट सामने लेकर आई है, हमने उसको किस तरह से डिफीट करना है. तो एक्चुअली होता क्या है एक ट्रायल के अंदर, इट इज जस्ट लाइक यू नो बिल्डिंग सम गुड बिल्डिंग, ऑलराइट. तो उसके अंदर क्या है कि वो स्टेप बाय स्टेप सोच रहा है कि इस तरह से पूरी फाइल को मुझे लेकर चलना है. जबकि जो अपील लॉयर है उसका क्या काम है, वो सिर्फ एक फाइल देखते हैं, और जिस तरह आप समझते हैं कि कोई भी एक आर्ट क्रिटिक होता है, तो बैठ के बताएगा, देखेगा कि यार इसमें तो ये कमी रह गई है, ये जो इंक है ये इस तरह से सही नहीं लगी है, ये चीज इस तरह से होनी चाहिए. सो ही इज जस्ट क्रिटिसाइजिंग व्हाट हैज बीन डन बाय द ट्रायल लॉयर एज वेल एज द ट्रायल कोर्ट इटसेल्फ. वो जो ट्रायल कोर्ट का लॉयर है, एक्चुअली ही इज द वन हु इज बिल्डिंग ऑल दोस थिंग्स. So when you are able to build something, then only you can be a good critic. So this is what is meant by Mr. Justice S.J. Bazaf. और ये जो मैंने कोट किया है, रादर उन्होंने एक मूट कोर्ट कंपटीशन को डिस्कस करते हुए उसमें उनको इनवाइट किया गया था, और उसमें उन्होंने जो है ये बात कही गई, एंड विच वाज रिपोर्टेड बाय द इंडियन टाइम्स. तो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मूट कोर्ट के साथ साथ मॉक ट्रायल को लाजमी सीखें, because that will only enable you to become a complete lawyer, in the words of Mr. Justice Bazaf. So, moving towards, okay, where is my cursor? So, team composition क्या है? Let's delve into the trial itself. अब सोचें कि कौन से जो हैं वो एक्टिव मेंबर्स या पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि एक ट्रायल के अंदर जो है वो कर रहे होते हैं, और एज यू बीइंग अ पार्टिसिपेंट इन अ मॉक ट्रायल, आपको कौन से रोल्स का पता होना चाहिए और कौन से ऑल्टरनेटिव रोल्स अवेलेबल होते हैं. मूट कोर्ट का, लेट मी रिमाइंड यू ऑल, उसमें दो किस्म के रोल्स होते हैं, आइदर यू आर अ स्पीकर और यू आर अ रिसर्चर. लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है. यहाँ पे सिचुएशन है कि आइदर यू आर एन अटर्नी और यू आर अ विटनेस. आई मीन फॉर द पर्पसेस ऑफ कंपटीशन जनरली ऐसा किया जा सकता है कि जो दो मेंबर्स जो हैं वो अटर्नीज बन जाते हैं, और दो मेंबर्स को विटनेसेस बनाकर टोटल 4 पार्टिसिपेंट्स की जो है वो एक टीम बनाई जाती है. नाउ दैट टीम कैन बी प्रोसिक्यूशन, दैट टीम कैन बी डिफेंस, और ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी होता है कि आप 8 लोगों की टीम होती है, 4 उसमें प्रोसिक्यूशन प्ले कर रहे होते हैं और 4 डिफेंस प्ले कर रहे होते हैं. दिस इज हाउ इट गोज. बट देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रोल other than this, so which is the judge. That is the only role that actually matters, because all the presentation you as an attorney or you as a witness you are giving, it must impress the judge, because judge is the one who is going to preside over the courtroom, and he or she is the one who is actually going to decide what is going to happen in the courtroom. So now we have 3 roles: the attorneys, the witnesses, and the judge.
तो नाउ वी अंडरस्टैंड, वी विल डाइसेक्ट इट कि किसका क्या क्या रोल है और उसने क्या काम करना है. सो स्टार्टिंग विद द प्रोसिक्यूशन अटर्नी, बिकॉज मुझे ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से जो है बताया गया है कि वी हैव टू स्टिक टू अ क्रिमिनल ट्रायल, जिस सिनेरियो को हम एंड पे डिस्कस भी करेंगे. तो उसके अंदर जो सबसे पहले जो एक रोल स्टार्ट होता है जहाँ से, ओके फाइन, या थैंक यू. ओके, जो सबसे पहला जो रोल स्टार्ट होता है वो होता है प्रोसिक्यूशन अटर्नी का. प्रोसिक्यूशन का अटर्नी, जो प्रोसिक्यूशन का वकील है, वो आके सबसे पहले क्या करेगा, आके अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट देगा. उस ओपनिंग स्टेटमेंट की क्या क्या लवाजमात है या क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो उसने आके बताना है. लेट मी ब्रीफली टेल यू दैट. सबसे पहला उसके जो बताएगा वो आके वो ये है कि ये केस क्यों है, एक्यूज्ड कौन है, विक्टिम कौन है. वो आके बताएगा कि उनके पास क्या एविडेंस है, कौन से विटनेसेस को वो प्रोड्यूस करेंगे और कौन से विटनेसेस किस किस फैक्ट को प्रूव या कोलैबोरेट करेंगे. वो आकर बताएगा कि उनके पास इसके अलावा एडिशनल एविडेंस क्या है. वो आके ये बताएगा कि उसके पास कौन सी एक्सपर्ट विटनेस की रिपोर्ट है. ये सारी जो बातें हैं, जो चार्ज है उसके खिलाफ, जो उसके खिलाफ में सारी चीजें जो आगे करने वाली है. यू नो, आई टोल्ड यू कि अ ट्रायल लॉयर इज एन आर्टिस्ट. जो उसने पूरी आर्ट अपने जहन में तख्लीक की है ना कि मैं ये करूंगा, वो जो करूंगा वाला सारा स्टेप है वो उसने ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर कोर्ट के सामने और सब विटनेसेस के सामने और ज्यूरी के सामने, अगर वो है ज्यूरी है अगर, तो उसके सामने उसने ये रख देना है कि ये सारा कुछ जो है हम करने वाले हैं. और फिर हम आगे चलते हैं. प्रोसेस, अभी आपको ये इतना पार्ट समझ आ गया, वो प्रोसिक्यूशन अटर्नी क्या कर रहे हैं. उसके बाद जो प्रोसेस है वो ये है कि डिफेंस का अटर्नी आएगा. डिफेंस का अटर्नी आके अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट देगा और कोर्ट को बताएगा कि किस तरह से जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ जो भी चार्ज फ्रेम किया गया है या जो एविडेंस है वो किस तरह से नाकाफी है, वो किस तरह से प्रूव नहीं करता. वो सिर्फ ओपनिंग स्टेटमेंट सुनते हुए ही बताएगा कि जो जिन विटनेसेस का जिक्र किया जा रहा है प्रोसिक्यूशन की साइड से, क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं है या जो उनकी टेस्टिमनी है वो कॉम्पिटेंट नहीं है. ये सारा एक रफ आइडिया देगा, बिकॉज अभी अगली जो सारी कहानी है वो तो चलनी है, उसको हमें भी देखने के कोर्ट के सामने क्या कुछ रखा जाता है. लेकिन वो एक आगे ओवरव्यू देगा कि इस केस के अंदर डिफेंस जो है इस तरह से अपने केस को आगे लेकर चलेगी. दिस इज द मेन थिंग. नाउ अगेन जब स्टार्ट होगा ये केस तो सबसे पहले क्या करेगा प्रोसिक्यूशन ने, अच्छा याद रखें एक चीज, चाहे सिविल केस है चाहे क्रिमिनल केस है, जो केस लेकर आ रहा है कोर्ट में चीजों को प्रूव उसने करना. आई मीन दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रायल्स के द बर्डन to prove something is on the person who claims that thing. तो यहाँ पर चूंकि प्रोसिक्यूशन प्रूव करिए तो सबसे पहले वो अपने विटनेस को लेकर आएगी. लेट्स से कि वो अपने एक किसी भी प्राइम विटनेस को लेकर आती है. लेट्स से कि दैट इज एन आई विटनेस ऑफ दी, जिसने किसी शख्स को कत्ल करते हुए देखा. अगर एक मर्डर का ट्रायल है, वो सबसे पहले जो उनका विटनेस होना चाहिए दैट शुड बी एन आई विटनेस टू एक्चुअली प्रूव द मर्डर. वो उनको लेकर आई थी. और जो टेस्टिमनीज हमारे मॉक ट्रायल में ऑलरेडी, अच्छा मॉक ट्रायल इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल ट्रायल. एक्चुअल ट्रायल में क्या होता है कि जो आपके विटनेसेस हैं वो बैठते हैं, उनसे जो आपके अटर्नी हैं वो क्वेश्चनिंग आंसर करते हैं और सारा का सारा जो है वो उसी मौके पर जो वो बात बताती हैं वो उसी मौके पर जो है वो लिखी जा रही होती है. उसकी जिसको हम कहते हैं शहादत रिकॉर्ड की जा रही है या फिर टेस्टिमनी रिकॉर्ड की जा रही है. विटनेस की जो टेस्टिमनी है उसको कोर्ट के सामने लाया जा रहा है, व्हाटएवर टर्म्स यू यूज. लेकिन मॉक ट्रायल इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. यहाँ पे जो विटनेस की जो टेस्टिमनी है ना वो आपको पहले ही ड्राफ्ट करके दे दी जाती है. अब एज अ प्रोसिक्यूशन अटर्नी आपका काम क्या होता है कि जो ऑलरेडी ड्राफ्टेड है उसी को आपने क्वेश्चनिंग के फॉर्म में जो है वो अपने विटनेस के सामने रखना है और उस विटनेस ने जो है वो उसको प्रूव करना है. उस विटनेस ने उसी टेस्टिमनी के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर्स देने हैं. नाउ दिस विटनेस हैज टू रिमेंबर कि उसने अपनी रिटन टेस्टिमनी क्या दी. I mean, this is a little bit different from the actual trial, but this is how competition is organized. क्योंकि अगर हम उसको पहले लिखेंगे नहीं तो फिर उसमें से क्रॉस एग्जामिनेशन के अच्छे क्वेश्चंस नहीं बन सकेंगे, टीम्स को तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा. So we have to create exception in order for the students to learn. So then वो जो विटनेस अपनी एक सारी की सारी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवा देगा, उसके बाद क्या होगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए डिफेंस अटर्नी को इनवाइट किया जाएगा. नाउ डिफेंस अटर्नी जो उसने रिटन टेस्टिमनी दी हुई है और जो उसने चीजें कोर्ट के सामने लिखवाई हैं, उन दोनों को बेस बनाकर जो है वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेगा. वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग तो क्या होगी, कैसे उसको हैंडल करना है, ये हमारे नेक्स्ट सेशन की डिस्कशन है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए क्या है कि
कि आपको सिर्फ प्रोसेस का पता होना चाहिए कि वो आएगा और आके उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा, एंड देन द नेक्स्ट विटनेस विल कम, एंड देन उसके भी एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, और यहाँ तक बात रुक जाएगी। क्लोजिंग स्टेटमेंट को भी आपने नहीं देखना। आगे क्या होगा कि डिफेंस अटर्नी आएगा और वो आके अपनी साइड का विटनेस प्रोड्यूस करेगा। नाउ डिफेंस अटर्नी जो है जब वो अपनी साइड का विटनेस प्रोड्यूस करेगा, उसकी वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन इन चीफ कंडक्ट करेगा, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन को इनवाइट किया जाएगा कि वो आके इसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन करें। उसी तरह से सिमिलर एक्टिविटी है, रिपीट होगी विटनेस 1 के साथ और विटनेस 2 के साथ, जो कि जिसको हम जनरली लिखते हैं DW या डिफेंस विटनेस 1, डिफेंस विटनेस 2, और ये एक्टिविटी पूरी की पूरी रिपीट हो जाएगी। नाउ व्हाट हैज हैपेंड बिफोर द कोर्ट इज कि सारी की सारी जो टेस्टिमनीज हैं जो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की ओपनिंग स्टेटमेंट की रोशनी में थी, अब कोर्ट के सामने आ चुकी है। यू बीइंग अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर, आप सब बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि क्या चीजें जो हैं वो प्रूव हो रही हैं, क्या नहीं प्रूव हो रही हैं। एंड देन देयर इज द रिसेस, 5 मिनट की या 2 मिनट की ब्रेक दी जाती है दोनों अटर्नीज को अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की। नाउ लेट मी टेल यू कि हाउ क्लोजिंग स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने सब कुछ क्या बताया था कि ये सब कुछ होगा, ऐसा किया जाएगा, ये बात की जाएगी, ये बात प्रूव की जाएगी, लेकिन अब वो सारा प्रोसेस जो उसने प्रूव करना था वो हो चुके हैं, दैट इज पास्ट इन टाइम। अब उसने कोर्ट को बहुत ही कंसाइज स्टेटमेंट के अंदर समझाना है कि योर ऑनर, ये हमने विटनेस लेकर आया, उसने ये बात प्रूव की, क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ये बात स्टैंड की, लिहाजा ये बात प्रूव्ड है, ये इसके ऊपर लॉ है, ये इसके ऊपर केस लॉ है, लिहाजा इस विटनेस, इस जो एक्यूज है उसको यही इज रियली द कॉन्विक्ट, इसको जो है आप सजा सुनाएं। अब उसके बाद क्या होगा कि डिफेंस अटर्नी आएगा और आके जो जो फ्लॉज थे प्रोसिक्यूशन के विटनेस के अंदर वो आके बताएगा कि ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। वो आके ये भी बता सकते हैं कि लेट्स से कि कोई अगर विटनेस ऐसा प्रोड्यूस की जाता है जो कि प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा है, अगर एक्यूज प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा है और प्ली ऑफ एलिबाई ये है कि मैं तो उस मौके पर था ही नहीं, मैं तो किसी और जगह पर था, और फिर और अगर किसी विटनेस ने आके वाकई में ये प्रूव कर दिए कि ये वाकई में वहां पर नहीं था, तो ऐसी सूरत हाल में डिफेंस अटर्नी फोकस करेगा कि मेरे जो प्ली ऑफ एलिबाई का जो विटनेस था उसकी टेस्टिमनी जो है वो उसको क्वैश नहीं कर सके, वो उसमें कोई फ्लॉ नहीं निकाल सकी प्रोसिक्यूशन, जिसका मतलब है कि वो विटनेस मेरा जो है वो सच बोल रहा है, लिहाजा ये जो एक्यूज्ड है ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड, ही शुड बी सेट स्कॉट फ्री, ही शुड बी फ्री। ये असल बात है जो कि आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में करनी है। दिस वाज द होल ऑफ द सिनेरियो जो कि मैंने आपको बताया कि एक मॉक ट्रायल में क्या होता है। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू कि वहां पे जो रोल्स थे वो क्या थे, या अटर्नी का था या विटनेस का था। जो जज का रोल है अब हम उसको डिस्कस करें। ओके, विटनेस का बता दिया, क्योंकि हमने अटर्नी के अंदर इसको डिस्कस कर ली है इसलिए शायद इसको स्पेसिफिकली डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हम इसको एंड पे टेस्ट कर लेंगे। कमिंग टूवर्ड्स कि जज का क्या रोल है इस सारे प्रोसेस में। आई मीन आपने सोचा होगा कि ये सारा काम तो विटनेसेस का है या अटर्नीज का है, इसमें जज का तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसमें क्या पर्पस है जज का कि जज वहां पर बैठ के प्रिजाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें जज का रोल है वो ये है कि उसने सारी की सारी प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करना है, सारा का सारा बताना है कि अब कौन आएगा, क्या कहेगा, एवरीथिंग। और लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें एक जज का होता है, जिसके लिए हमें आई मीन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में चूंकि बहुत ज्यादा मॉक ट्रायल कॉम्पिटिशन्स नहीं हुए हैं अभी, लिहाजा बहुत ज्यादा मॉक ट्रायल के पार्टिसिपेंट्स नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे मॉक ट्रायल के जजेस भी नहीं है। तो इसमें जो करना है बेसिकली मुझे करना है, हमने अपने स्टूडेंट्स को और आगे जो हमारे दूसरे जो कोलीग्स उनको ट्रेन करना है कि एक मॉक ट्रायल के जज ने कैसे काम करना है। उसका मेन पर्पस आएगा कि उसमें जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको एड्रेस करना है। फॉर इंस्टेंस अगर डायरेक्ट एग्जामिनेशन चल रही है तो एक बड़ा प्राइम रूल है कि आप लीडिंग क्वेश्चन जो है वो अपने विटनेस से नहीं पूछ सकते हैं। तो अगर कोई अटर्नी एक लीडिंग क्वेश्चन पूछता है तो उसी वक्त क्या होगा कि जो डिफेंस का या जो दूसरा अपोजिंग काउंसिल होगा वो उसको वहां पे ऑब्जेक्शन लेगा और कोर्ट कहेगा कि ये एक लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, और जज उसके ऊपर क्या करेगा कि दूसरी पार्टी को जिसने लीडिंग क्वेश्चन पूछा है उस अटर्नी को एक मौका देगा कि आप बताइए कि ये लीडिंग क्वेश्चन कैसे नहीं है। वो कंसाइजली बताएगा और जज उसके ऊपर अपनी रूलिंग देगा। वो कहेगा कि क्या ये लीडिंग क्वेश्चन है या ये नहीं है, बाय 2 वर्ड्स, आइदर सस्टेन्ड और ओवररूल्ड। सस्टेन्ड का मतलब है ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, कि अगर उसने ऑब्जेक्शन लिया कि इट वाज अ लीडिंग क्वेश्चन तो उसको सस्टेन कर दिया, यानी कि हाँ ये लीडिंग क्वेश्चन था, यू विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। और अगर वो कहे ओवररूल्ड, इसका मतलब है कि जो उसका ऑब्जेक्शन था दूसरे अटर्नी का वो दुरुस्त नहीं था। इन्हीं सारी चीजों की बेसिस के ऊपर आपकी वैल्यूएशन होनी है। आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट नाउ कि आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि मॉक ट्रायल एक्चुअली चल कैसे रहा होता है।
So the most important part in all this is कि evaluation का क्या criteria है. Evaluation के अंदर different steps mock trial में रखे हुए हैं, which जब आप participate करेंगे competition के अंदर, you will learn कि आपकी opening statement कितनी impressive है, दोनों sides की, either the prosecution or the defense. फिर एग्जामिनेशन इन चीफ जो अपने विटनेसेस की करवा रहे हैं, जो रिटन टेस्टिमनीज ऑलरेडी अवेलेबल है रिकॉर्ड के ऊपर, आप किस हद तक उससे वो क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं और राइटफुली पूछ रहे हैं. और फिर उसके अंदर ये है कि दूसरे काउंसिल ऑब्जेक्शन कैसे ले रहे हैं, ऑब्जेक्शन कितने सस्टेन करते हैं, कितने ओवररूल करते हैं. फिर क्रॉस एग्जामिनेशन किस तरह से की जा रही है, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ इस पर्पस के लिए की जा रही है कि बस क्रॉस एग्जामिन कर लिया, वाकई ही में उसमें कोई सब्सटेंस निकाला जा रहा है. एंड देन देयर इज द क्लोजिंग स्टेटमेंट. तो ये 5-6 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली पूरे मॉक ट्रायल के, जिसके अंदर वी बीइंग अ जज हम उसको चेक करते हैं कि इन पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी थी. एज ए मूट कोर्ट कंपटीशन मॉक ट्रायल में भी कभी भी मेरिट ऑफ द केस को डिस्कस नहीं किया जाता, हमेशा पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस को डिस्कस किया जाता है. तो दिस वाज द मेन थिंग जो कि इसके अंदर होता है. अच्छा, अभी ऐसा है कि मुझे क्योंकि अभी लेटली बताया गया था कि वी हैव अ केस सिनेरियो जो कि कल आज या कल आपका डिस्कस किया जाएगा, तो उसको ब्रीफली हम सिर्फ देख लेते हैं अभी, बाकी फिर हम उसका एक रिकैप लेते हैं जो हमने आज सारा का सारा किया, एंड देन वी कैन मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन. So, okay, the other speaker is here. I am really sorry, sir. I am taking a little bit of your time, but I'll just try to wrap it up a little bit sooner, inshallah. So, just one moment. Let me share that screen with you. Okay. I guess this was it. Just confirm to me. आपको केस मेरे वाली फाइल जो है वो नजर आ रही है? अमार, can you please confirm to me? Yes, sir. बिल्कुल. All right. तो इसमें क्या है जो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए जो हम केस सिनेरियो जिसको लेकर चलेंगे, दैट इज अली नवाज वर्सेस द स्टेट. ओके, वेल वील डिस्कस दैट कि ये अली नवाज वर्सेस द स्टेट क्यों है, हालांकि ये द स्टेट वर्सेस अली नवाज होना चाहिए. वेल विल सी दैट. इसमें सिंपली क्या है कि केस सिनेरियो भेजा हुआ है कि एक अली नवाज को जो है मर्डर चार्जेस ऊपर कहें, उसका बिजनेस पार्टनर है जुनैद सलीम. वाओ, व्हाट एन इंटरेस्टिंग नेम. आई मीन अल्लाह ताला जुनैद सलीम साहब जो असल में है उनको लंबी जिंदगी दें. बट इसमें हमारे सिनेरियो में जुनैद सलीम साहब है. तो जुनैद सलीम साहब का जो है मर्डर हो जाता है. अब उसके पीछे एक लंबी स्टोरी लिखी गई है किस तरह से जुनैद सलीम साहब जो हैं वो एक गैम्बलिंग की एडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व थे, फिर बाद में कुछ लोन्स पे ले रहे थे. फिर एक जमाल खान साहब हैं जो कि उन जो एक लोन शार्क लोन्स जो होते हैं, जो कि आजकल आपने देखा भी है कि बड़ा एक हॉट टॉपिक है हमारा डिस्कशन का कि ये किस तरह से जो है लोन की जो कंपनीज हैं ऑनलाइन वो लोगों के साथ फ्रॉड कमिट कर रही हैं एंड ऑल दैट. तो ये सारा कुछ एक उसकी बेसिस बनाई गई है इस सिनेरियो में, और एंड पे बताया गया है कि जुनैद साहब जो हैं उनकी सारे मामलात के बाद, बिजनेस के बाद उनकी डेथ हो जाती है, और नजर ये आ रहा है कि इट माइट बी अ मर्डर. और मर्डर चूंकि अली नवाज साहब के साथ जो कुछ मामला चल रहे थे कारोबारी, लिहाजा एक मोटिव की बुनियाद पर जो अली नवाज साहब है उनके खिलाफ एक केस स्टार्ट हो चुका है. नाउ अली नवाज साहब इज फेसिंग दी चार्जेस ऑफ अ मर्डर. तो दिस इज द सिनेरियो जिसको हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे. नाउ लेट मी जस्ट गिव अ वेरी ब्रीफ रिकैप of all that we have learned today, just very briefly. Here it is. Okay. Oh no, not like that. Just the last slide. Just the last. So here it is. All right. So हमने इसमें क्या देखा है कि हमने एक मॉक ट्रायल का ओवरव्यू लिया कि मॉक ट्रायल है क्या, फिर हमने देखा कि ट्रायल और मूट का डिफरेंस क्या है, फिर मॉक ट्रायल के जो की रोल्स हैं हमने उनको देखा, अटर्नीज हैं, विटनेसेस हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल जज, बिकॉज ना सिर्फ ये कि उसने पूरे कोर्टरूम को प्रिजाइड करना है बल्कि ये कि उसने आपको इवैल्यूएशन भी करनी है, विच विल एक्चुअली लीड यू टू, आई मीन टू बी द विनर और यू नो द नॉट विनर. आई मीन आई डोंट कॉल एनीवन लूजर बिकॉज दैट्स रियली अ बैड टर्म. नो वन शुड बी दैट. So I mean, who wins and who tries, that can be a better term. तो वो जो है जज बेसिकली एक इवैल्यूएशन, एक क्राइटेरिया के बेस पे आपको डिस्कस करेगा कि किस तरह से जो है आपने उसके इवैल्यूएट किया, कि आपने कैसा परफॉर्म किया, एंड दैट वाज द ऑल अबाउट हाउ अ मूट कोर्ट एक्चुअली वर्क्स, a mock trial actually works. Sorry for this slip. Now the maybe not so important thing, but I really hope so that you might have any questions. अगर कोई क्वेश्चन हैं आपके तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सिंपली जो है वो हैंड रेज कीजिए, एंड देन वी विल एड्रेस maybe a couple of questions, and then I'll just request the organizers कि वो जो है नेक्स्ट स्टेज की तरफ जो है मूव ऑन, नेक्स्ट
जो हमारे स्पीकर हैं अवैस साहब, उनकी तरफ मूव ऑन करें। ओके, सो राहिब, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। ऑलराइट राहिब, आई एम अनम्यूटिंग यू, तो आप इसको जो है बताइए वेरी ब्रीफली कि आपका क्वेश्चन क्या है। अस्सलाम सर मेरा क्वेश्चन ये है कि समटाइम्स जो अटर्नी है प्रोसिक्यूशन साइड का, वो हम विटनेस को यस और नो के आंसर पे स्टिक कर देता है, लेकिन होता यह है कि अगर मैं यस कह रहा हूँ तो वो चीज़ मेरे खिलाफ जा रही है, मतलब कि मुझे उस चीज़ का राइट इंसेंटिव नहीं है। अगर नो कह रहा हूँ तो वो उसके लिए बोनस पॉइंट है, लेकिन मैं किसी तरीके से चाह रहा हूँ कि मैं उसके आंसर को थोड़ा ग्रिल करूँ, मतलब मैं थोड़ा बहुत उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। जब मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो जाहिर बात है मैं एक चैन पर पहुंचूंगा, लेकिन वो मुझे एक्सप्लेन करने नहीं देता अपना आंसर। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि हम इसे किस तरह से लेकर चल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? ऑलराइट राहिब, वैसे तो ये जो क्वेश्चन है आपका, हम इसको स्पेसिफिकली एड्रेस करने वाले हैं हमारे सेशन 4 में, बट सिंस यू हैव आस्क्ड तो हम इसी वक्त जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। राहिब, होता ये है कि आपने हमेशा जब ट्रायल तैयार करना है तो ये सोच के तैयार करना है कि एक पूरी जो सिनेरियो, जो पूरा कंपटीशन इंक्लूडिंग द जजेस है ना, दे आर ह्यूमन। उनको नजर आ रहा होता है कि क्या कौन सा पार्टिसिपेंट क्या कर रहा है, उनको नजर आ रहा है कि विटनेस अगर इस चीज को अवॉइड कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर एक अटर्नी बार बार एक चीज के ऊपर स्टिक है तो वो कैसे है। आई मीन इफ आई वर यू एंड इफ आई वर इन अ सिमिलर पोजीशन जहां पे अटर्नी मुझे कह रहा है बार बार कि यस और नो में ही आंसर करना और कोई एक्सप्लेन नहीं करना, तो आई वुड जस्ट कीप आंसरिंग के हिम के maybe depends, I would say these words, depends, that depends, I'll have to think about उसकी रीजन क्या है। देखिए, जिसमें आपने बताया कि अगर यस है तो भी गलत इस तरह से, अगर नो है तो भी उस तरह से है, तो ऐसी सूरत हाल में यू समटाइम्स कुछ अटर्नीज ऐसे होते हैं जो कि बड़े ही हाउ डू यू से कि वो पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो ये वाला आंसर लेके मैंने इसको गलत साबित कर देने। तो वहां पे आपका जो विटनेस है उसकी नर्व्स की बात है कि वो कैसे उसको टेकल करता है। वो इस तरह की वर्ड्स यूज करके, जब जज भी है ना, जज भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली क्या होगा कि वो बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करेगा। रिपीट जब वो करेगा तो थोड़ा सा वो समझ लें कि एक एजिटेशन कॉज कर रहा होगा। जब वो एजिटेशन कॉज करेगा तो फिर जो आपका जो अटर्नी है वो उसी वक्त ऑब्जेक्शन लेगा उसकी एजिटेशन कॉज करने पे। और अगर वो ऑब्जेक्शन लेगा और अगर वो एजिटेशन जो है वो रॉन्गफुल है, या जो विटनेस का रिस्पॉन्स है वो जज को लग रहा है कि वो राइटफुल है, तो ऐसी सूरत हाल में जज फौरन इंटरवीन करते हुए कह देगा कि प्लीज रीफ्रेज द क्वेश्चन, या फिर लेट हिम एक्सप्लेन। तो वहां पर जज आपको हेल्प करेगा टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। दैट्स हाउ इट कैन बी टैकल्ड। So, any other question from anyone? जी सर, बिल्कुल, मैंने चैट बॉक्स में कहा था कि सब पार्टिसिपेंट को कि वो अपने क्वेश्चन शेयर कर लें। हमारे पास हादिउल हसन का क्वेश्चन है कि इफ वी आर फ्रॉम कंप्लेंट साइड एंड आर इन चीफ स्टेटमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड। थोड़ा सा इन्होंने, उनका कहने का मतलब ये कि अगर वो कंप्लेंट साइड से हैं तो उनकी चीफ स्टेटमेंट कब एक्सेप्ट होगी? हाँ, नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। थोड़ा उन्होंने लिखा है इफ वी आर फ्रॉम कंप्लेंट साइड एंड कंप्लेनेंट साइड, ठीक है जी, and our in chief statement is not exhibited, question mark, that's the question. I guess next ओके आप ओके ऑलराइट आप, मैंने पढ़ लिया उनका, हादिउल हसन का, इफ फ्रॉम कंप्लेनेंट एंड आवर इन चीफ स्टेटमेंट इज नॉट एग्जिबिटेड। अच्छा, नहीं देखिए मॉक ट्रायल जो असल में है उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मॉक ट्रायल, सॉरी, जो असल ट्रायल है हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं हादी, हम अभी मॉक ट्रायल को डिस्कस कर रहे हैं। और मॉक ट्रायल में क्या किया जाता है कि विटनेस की जो टेस्टिमनीज है उनको पहले ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है, हम इसमें एग्जिबिट कराने की इजाजत नहीं देते हैं। हालांकि होता ये कि असल ट्रायल के अंदर अगर आपका जो पहले का बयान होता है, जो कि 161 के अंडर जो बयान, जो आपका कोर्ट पुलिस के पास जो बयान रिकॉर्ड किया जाता है, वो वाला जो बयान है वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो रिक्वेस्ट कर देते हैं अटर्नी कि वो एग्जिबिट करवाएं क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर, ताकि उसमें से कॉन्ट्राडिक्शन निकाल सकें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसा नहीं है तो हम उस असल ट्रायल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक कि आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गया। यहाँ पे वो चीज रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन जो है वो असल ट्रायल से बड़ा पर्टिनेंट है। Case laws, all right. So we have another question. Case laws shall be presented at which part of the trial? At the closing, at the closing, जो आपकी closing statements है ना, वहां पे, I mean, वहां पर आपने क्या किया है कि आपने सारा का सारा ट्रायल हो गया, आपने अपनी जो केस है उसको थ्रू दी बाय मींस ऑफ प्रूविंग कि एविडेंस क्या क्या आया था, और उस एविडेंस से अगर रेलिवेंट कोई केस लॉ है, कोई ऑलरेडी केस डिसाइडेड है कोर्ट की तरफ से, तो फिर उसको जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो उस पार्ट के ऊपर आप करते हैं। अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो आई हैव जस्ट लेफ्ट ऑल ऑफ माय डिटेल्स हियर। आप यू कैन अप्रोच मी एट माय मेल और
LinkedIn or WhatsApp, wherever you feel is I'm available, like all on the social media. So that's perfectly fine with me. सर एक जो But लास्ट right, क्वेश्चन yes. जो 2 दफा पूछा गया, वो पूछा गया मॉक ट्रायल के स्ट्रक्चर के बारे में, उस पर एक ब्रीफ सा कर दें, फिर हम इस पे वाइंड अप करते हैं। वेल मॉक ट्रायल का स्ट्रक्चर बेसिकली जो हमने सारा डिस्कस किया वो यही है कि आपकी जो अटर्नीज हैं, जो विटनेसेस हैं, वो आपके की रोल्स हैं। पहले जो है ब्रीफ बता देते हैं। पहले जो है प्रोसिक्यूशन आएगी, आके अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट देगी, फिर उसके बाद डिफेंस का अटर्नी आएगा, वो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट देगा, फिर प्रोसिक्यूशन के विटनेस आएगा, विटनेस 1, वो आपकी अपनी टेस्टिमनी देगा और उसके लिए जो है उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ या डायरेक्ट एग्जामिनेशन वो रिकॉर्ड की जाएगी। फिर उसी के विटनेस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, फिर प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 आएगा, फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन जो है वो कहेगी कि आई रेस्ट माय केस, मैंने जो प्रूव करना था मैंने कर दी है। फिर डिफेंस विटनेस जो है वो आएंगे, डिफेंस अटर्नी उनकी एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड करेंगे। फिर प्रोसिक्यूशन अटर्नी उस डिफेंस विटनेस 1 की जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। सिमिलर प्रोसीजर डिफेंस विटनेस 2 के साथ रिपीट होगा। फिर उसके बाद एक रिसेस आएगी, 2-3 मिनट की ब्रेक होगी, उसमें जो है जो प्रोसिक्यूशन के अटर्नी है वो आएंगी, अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देंगे, सारा कुछ प्रूव करेंगे। फिर जज जो डिफेंस अटर्नी है वो आएंगे, वो अपनी सारी स्टेटमेंट देंगे, अपने केस क्लोज बताएंगे, किस तरह से जो है ये हमें डाउट का जो है वो अपना क्या कहते हैं, आई जस्ट फॉरगॉट द वर्ड, दैट डजंट मैटर, बेनिफिट ऑफ डाउट। तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, जो हमारा एक्यूज्ड है he is not the right person, जिसको कन्विक्ट करना चाहिए, etc. And then it concludes. This is the whole structure of a mock trial competition. Right, sir. Sir, thank you so much for such an in-depth and inspiring talk. Session. Just one thing, I really hope कि participants ने कुछ सीखा होगा. And secondly ये कि I think we have a session tomorrow as well, so we can take this session tomorrow, inshallah. Inshallah, sir. Thank you so much, sir.